Prabhupada, Guru Maharaj, and all Vaishnavas. So, today's discussion from Nectar of Devotion, chapter 24. Further traits of Sri Krishna. After describing different opulences of Krishna, Srila Rupa Goswami tries to further describe the transcendental beauties and qualities of Lord as decorated, enjoying, pleasing, dependable, steady, and predominating. Decorated, enjoying, pleasing, dependable, steady, and predominating. He is also described as a meticulous dresser and a magnanimous personality. These are generally considered to be the qualities of great personalities. Decorated quality traits are decorated. It is said that a person is great if he is decorated with qualities of being very merciful toward the unfortunate, very powerful, superior, chivalrous, enthusiastic, expert, and truthful. तो हम लोग का जो क्वालिटी है ये इसको बोलते ज्वेल्स डेकोरेशन है, आभूषण है। तो इसलिए भगवान का पास में जो है इज वेरी मर्सीफुल टू अनफॉर्चुनेट एंड वेरी पावरफुल, सुपीरियर, chivalrous, enthusiastic, expert, truthful. These decorations were manifested in the character of Krishna during his Govardhan Lila. At that time देखिए भगवान वेरी पावरफुल है बट साइमल्टेनियसली इज आल्सो वेरी मर्सीफुल है, सुपीरियर एंड chivalrous मीन्स फाइटिंग स्पिरिट है, एंथुसियास्टिक है, एक्सपर्ट है, सत्यवादी है, ट्रुथफुल है। तो ये गोवर्धन लीला में सब ट्रेड दिखाने में मिला था। एट दैट टाइम द होल ट्रैक्ट ऑफ लैंड इन वृंदावन वाज बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय द rain sent by Indra elsewhere. At first, Krishna thought, "Let me retaliate against this vengeance of Indra by destroying his heavenly kingdom." But later on, when when he thought of the insignificance of the king of heaven, Krishna changed his mind and felt merciful toward Indra. No one is able to tolerate the wrath of Krishna, so instead of retaliating Krishna against Indra, he simply showed his compassion for his friends in the Vrindavan by lifting the whole Govardhan hill to protect him. Initially, भगवान सोच रहे थे कि मैं इंद्र को एक शिक्षा दूंगा, लेकिन वो देखे कि वो तो इंद्र तो हमारा नीचे में है, बहुत छोटा है, उसको क्या हम क्या देंगे, शिक्षा देंगे। इसलिए छोड़ो उसका पास में, उसको छोड़ के रेदर जो वृंदावन वासी है, ब्रजवासी है, उनको हम कृपा करके उनको हम ध्यान दें और उनका दुख को निवारण करें। तो इसलिए उनको छोड़ दिए इंद्र को। फिर इंद्र बाद में आके क्षमा मांगते हैं। एंजॉइंग, तो ये डेकोरेटेड, देन एंजॉइंग व्हेन अ पर्सन इज सीन टू बी ऑलवेज हैप्पी एंड accustomed to speak smilingly, he is considered to be in the mode of enjoyment. This trait was found in Krishna when he appeared at the sacrificial arena of King Kamsa. He described that the lotus-eyed Krishna entered among the wrestlers without being impolite to them, glanced over them with determination and seemed to them just like an elephant attacking some plants. ये कंस का पास में जो गए थे, उनका जो युद्ध हुआ था, मुष्टि युद्ध, उस टाइम का बात है। तो वो जब जस्ट एलिफेंट है, कितना एंजॉइंग मूड में है, वो जो पेड़ पत्ता है उसको ऐसे उखाड़ के फेंक देता है। तो इसलिए भगवान इस टाइप का लग रहे थे। कृष्ण वाज स्टिल स्माइलिंग एंड इन दिस वे he stood valiantly upon the wrestling dais, and very pleasing. When one's characteristics are very sweet and desirable, the personality is called pleasing. An example of Krishna's pleasing nature is this described in Srimad Bhagavatam. One day, well, किसी का पास में किताब है या नहीं है? Somebody is studying or not? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, तो मैं दूसरा को बोलूंगा पढ़ने के लिए फिर। One day, while Krishna was awaiting the arrival of Srimati Radharani by the bank of Jamuna, he began to make a garland of kadamba flowers. In the meantime, Srimati Radharani appeared there, and at that time, Murari, Krishna, the enemy of Mura, glanced over Radharani very sweetly. भगवान का जो प्लीजिंग नेचर है, डिपेंडेबल, एनी पर्सन हु इज रिलायबल इन ऑल सर्कमस्टेंसेस कॉल्ड डिपेंडेबल। हम लोग कल डिस्कस किए थे मिस्टर डिपेंडेबल, मिस्टर डिपेंडेबल, उनका ऊपर में हम डिपेंड कर सकते हैं।
अभय प्रदान करते हैं वो, या हर सिचुएशन में हमको रक्षा कर सकते हैं। इसलिए भगवान कोई भी भगवान को कुछ भय नहीं है। तो एंड भगवान का जो भक्त है वो भी भयभीत नहीं होता है। वो इवन जितना भी बड़ा भय आता है वो भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसलिए हम उनको उनका ऊपर में इतना डिपेंडेंट हो सकते हैं। तो भगवान तो सब बिग स्वराट इज सुप्रीम इंडिपेंडेंट एंड ऑल्सो इज वेरी पावरफुल। तो उनका पास में हम शरण ले लेंगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, चिंता नहीं है। तो इवन इन द मिडिस्ट ऑफ डेंजर का बीच में भी स्पोर्टी एक्टिविटीज में वो एंगेज हो सकता है। पर्सन हु हैड नेवर अंडरगॉन द रिफॉर्मेटरी different rituals ceremonies of death are confident that Krishna would accept only faith and devotion, and so they are engaged in Krishna consciousness and are freed from all anxieties. In other words, भगवान के पास में जोड़ने से हमारा सब कुछ जो एंग्जाइटी चला जाता है। In other words, all kinds of men from the demigods down to the uncultured can rely on the causeless mercy of the Supreme Lord. दूसरा क्वालिटी है स्टेडी। A person who is not disturbed even in the situation of reverse is called steady. Steady means से कोई नेगेटिव सिचुएशन में भी वो डिस्टर्ब नहीं होता। This steadiness was observed in Krishna in connection with his chastising demon known as Bana. बाणासुर का जो हुआ था। Steady then predominating। भगवान the Lord, a person who can affect the mind of everyone is called predominating। दूसरा का माइंड को वो डोमिनेट कर सकता है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं, माय डियर किंग कृष्णा इज दासे, he is a thunderbolt to the wrestlers, to the common man he is the most beautiful human being, to the young girls he is just like Cupid, to the coward man woman he is just the most intimate relative, to the impious king he is the supreme ruler, to his parents Nanda Yashoda he is just like a baby, or to Kamsa he is king Bhoja, he is death personified, to the dull and stupid he is just like a stone, to the yogis, he is the supreme absolute truth, and to the Brahmins, he is the supreme personal Godhead. In 70 position, Krishna appeared in that arena with his older brother Balaram. Now, Krishna, the reservoir of all mellows was present in the arena of Kamsa. He appeared differently to the different persons who are related to him in different mellows. It is stated in Bhagavad Gita that he appears to every person according to one's relation with him. भगवान को इसलिए जे जैसे जैसा हम प्रपोजन ते भजामी हम भगवान को जे जैसे रिलेशनशिप में रखना चाहते हैं। भगवान को कोई हस्बैंड मानता है, भगवान कोई बच्चा मानता है, बेटा मानता है, भगवान को कोई फ्रेंड मानता है, तो भगवान उसी हिसाब से रिस्पेक्ट करते हैं। समटाइम्स लर्नड स्कॉलर्स डिस्क्राइब प्रीडोमिनेटिंग टू मीन a person intolerant of being neglected. This particular peculiarity in Krishna was visible when Kamsa was insulting Maharaj Nanda. Vasudeva was asking Krishna's assistance in killing Kamsa, and Krishna was glancing over Kamsa with longing eyes, just like a prostitute, and was just preparing to jump at the king. Meticulous dresser. A person who is very fond of dressing himself is called Lalita, or a meticulous dresser. This characteristic was found in Krishna in two ways. Sometimes he used to decorate Srimad Radharani with various marks, and sometimes when he was preparing to kill demons like Aristasura, he would take care of to arrange his belt very nicely. तो खुद को भी वो डेकोरेट करते हैं और दूसरा को भी डेकोरेट करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं। तो मैग्नानिमस अनदर ट्रेट है, बहुत विशाल हृदय वाला मैग्नानिमस। ए पर्सन हु कैन गिव themselves to anyone is called magnanimous, or called magnanimous. No one could be more magnanimous than Krishna, because he is always prepared to give himself completely to his devotee. Even to one who is not a devotee, even to one Krishna is in the form of Lord Chaitanya is prepared to give himself and to grant deliverance. तो ये भगवान सबसे मोस्ट म्यूनिफिशेंट इनकारनेशन लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण है। Although Krishna is independent of everyone, out of his causeless mercy, he is dependent upon Garg Rishi for religious instructions. For learning the military art, he depended on Satyaki, and for good counsel, he depended on his friend Uddhava. तो फिर भी भगवान इसको लीला जी से करते थे। भगवान तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी लीला लीला में रहते हैं तो उससे ट्राई करते हैं, डिपेंडेंट अपन गर्ग मुनि
भगवद ऋषि फॉर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, मिलिट्री सीखने में सात्विकी से एंड गुड काउंसलिंग उद्धव से ये लेते थे, लेकिन भगवान उसको पता है। नेक्स्ट एनीबडी एल्स ये भी किताब तो वही है, किताब है, इसमें क्या बताएं तो यहाँ पे प्रभु स्वामी भक्त को दो फास्ट बोले कि कृष्णा कॉन्सियसनेस में जो ऑलवेज ऑब्जर्व रहता है उसको बोलते डिवोटी, कृष्ण ऑफ कृष्णा। तो हम लोग कितना टाइम भगवान का साथ में कृष्ण में ऑब्जर्व रहते हैं उसको देखना पड़ेगा। देन ऊपर इसमें बोलते कि उसी में दो टाइप का कैटेगरी है जो भक्त है, एक प्रैक्टिसिंग एंड अनदर इज परफेक्टिंग डिवोटी। प्रोफेशनल स्टेज प्रैक्टिसिंग में साधना स्टेज में है, तो एंड भाव प्रेम स्टेज में जो है वो परफेक्शनल स्टेज है। इसलिए साधक को जो साधना करता है प्रैक्टिस स्टेज में उसको साधक बोलते हैं, जो कल्टिवेटिंग भक्ति कल्टिवेट कर रहा है। एंड इसलिए और इसके बाद में बोलते हैं कि यहाँ पे it is said that there is that person is unflinching faith in law and love for Christ personally Godhead, which is friendship with devotee। ये जो मध्यम अधिकारी के बारे में यहाँ बोल रहे हैं, प्रेम मैत्री कृपा अपेक्षा। तो यहाँ पे प्रेम जो भगवान को या सीनियर भक्त को प्रेम करता है, मैत्री अपना लेवल में भक्त का है तो मैत्री फ्रेंडशिप करता है, जो वरिष्ठ अधिकारी के है नीचे में है उसको कृपा करता है, और जो भगवान का प्रति इसका इंटरेस्ट नहीं है उसको नेग्लेक्ट करता है, उससे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, उसको नेग्लेक्ट करता है। नेक्स्ट। When one is found shedding tears by hearing of the pastime of the Lord, it is to be understood that the blazing fire of material existence will be extinguished by such watering. When there is shivering of the body and the hairs of the body stand up, it is to be understood that the devotee is nearing perfection. An example of sadhaka cultivating devotional service in Bilamangal Thakur इज जो is डिवोशनल सर्विस Bilamangal. बिल्वमंगल ठाकुर का जो एक्चुअली हुआ जिन भाव स्टेज नियरिंग प्रेम। तो जो भाव स्टेज नियरिंग प्रेम में क्या है पता चलता है कैसे, जो अश्रु चक्षु में अश्रु आ जाता है बाई हियरिंग द पास्ट ऑफ द लॉर्ड एंड blazing fire material existence is extinguished by such watering बोले हैं, and when there is shivering of the body and hair stands on the body। तो ये सब स्टेज को डिवोशनल स्टेज का जो है भाव स्टेज या नियरिंग प्रेम स्टेज को बोल रहे, भाव प्रेम स्टेज को अप्रोच कर रहे हैं भाव स्टेज में। When a devotee is never tired of executing devotional service and is always engaged in Krishna consciousness activities, constantly releasing the transcendental mellows in relationship with Krishna, he is called perfect. जनादर यहाँ पे एग्जांपल देते हैं कि पहले तो साधक को कौन है, एंड साधक को जब भाव स्टेज में आ जाते हैं नियरिंग टू प्रेम उनका क्वालिटी बोले, देन यहाँ पे अनदर दिस परफेक्ट स्टेज में बोलते हैं क्या होगा ना, वो कभी टायर्ड नहीं होता है। भगवान का भक्ति करते करते हम लोग टायर्ड हो जाते हैं ना, हमारे प्रैक्टिस स्टेज में, लेकिन जो भक्त है उसको टायर्ड नहीं लगता। जैसे कि बच्चा को जितना भी खेलने कूदने के लिए दे दो खेल कूद करते रहता है, इस टाइप का भक्ति जो करते हैं परफेक्ट स्टेज में आ जाता है, प्रेम स्टेज में आएगा, उसको भक्ति में कोई टायर्डनेस नहीं है, उसको खुशी लगता है, आराम से करते रहता है, उसको एनकरेजिंग लगता है, एंथुसियास्टिक लगता है, ही इज कॉल्ड परफेक्ट। यस। This perfectional stage can be achieved in two ways. One may achieve one may achieve this stage of perfection by gradual progress in devotional service, or one may become perfect by the causeless mercy of Krishna, even though he has not executed all the details of devotional service. हाँ एक मिनट, तो इसमें तो ये जो परफेक्शन स्टेज के जाने के लिए दो प्रोसेस है, एक साधना प्रोसेस और एक कृपा प्रोसेस। तो साधना सिद्ध या कृपा सिद्ध। तो साधना सिद्ध वो ग्रेजुअल प्रोसेस में जो बोला उसी स्टेज में रहते रहते वो करते करते जाता है, लेकिन जो कृपा सिद्ध है वो रेयर होते हैं, कम होता है, लेकिन वो भी हो सकता है, लेकिन इसमें वो डिटेल्स डिवोशनल जो सर्विस का विधिमान जो पूरा करते हुए नहीं जाता है, उसका ऑटोमेटिकली भाव स्टेज में पहुंच जाता है, वो भगवान का कृपा से, भगवान का भक्त का कृपा से, उसको बोलते कृपा सिद्ध, जो कि
परसेंटेज बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट। There is the following nice statement in the third canto, 11th chapter, verse 25 of Srimad Bhagavatam, describing a devotee who achieve perfection by regularly executing devotional service. A person who is freed from the false egotism of material existence, or an advanced mystic, is eligible to enter into the kingdom of God, known as Vaikuntha. Such a mystic becomes so joyful by constant execution of this regulative principle of devotional service that he thereby achieved the special favor of the Supreme Lord. Supreme Lord Yamraj, the mighty superintendent of death, is afraid to go near such a devotee. So we can imagine the um, potency of Potency. advanced devotional service, especially when devotee Sit together. sit together and engage in talking of the pastime of the Supreme Personality of Godhead. Those devotees express their feelings in such a way that they automatically melt with ecstasy, and may transcendental symptom become manifested in their bodies. Anyone desiring advancement in the devotional service must follow in the footsteps of such devotee. हम्म, तो इसमें यमराज के बारे में बोलते हैं कि यमराज को कौन रोक सकता है। तो यमराज को रोकने के लिए यमराज को बुलाना पड़ेगा। हमारा जो डिस्कशन में भगवान, वो यमराज भी वैष्णव है, तो इसलिए वो भी भगवान का जहाँ डिस्कशन होता है वो वहाँ आते हैं। तो भगवान को अगर उसी डिस्कशन में रख दिया यमराज को, तो फिर हमको जो है जमदूत वहाँ आ नहीं सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे यही बोल रहे थे कि भक्ति जो करेंगे, श्रवण कीर्तन करेंगे, भक्ति के माध्यम में करेंगे, वो इकट्ठा होके, यहाँ पे बोलते हैं कि तो उसमें क्या होगा ना, भक्ति बढ़ता है, उसमें हमारा फीलिंग्स बढ़ता है। अकेला करने से इतना नहीं आता है। जो संकीर्तना या मिल के करेंगे भक्ति से, तो उसका जो है अधिक फीलिंग्स आता है। एंड अकेला करने उतना फीलिंग नहीं आएगा। तो इसलिए ये पोटेंसी बढ़ जाता है। अगर पाँच एक एक मिला के पाँच होता है, तो एक एक मिला के पाँच नहीं, पाँच का 50 भी हो सकता है, उसका पोटेंसी बढ़ जाता है। Prahalad Maharaj said that no one can attain the perfectional stage of devotional service without bound down before exalted devotees. Learned sages like Markandeya Rishi attain perfection in devotional service simply by executing such regulative principle of service. तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि भगवान का भक्त का पास में सरेंडर नहीं होके कोई भी परफेक्शन स्टेज में पहुंच नहीं सकता है। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। तो मार्कंडेय ऋषि attained perfection by in devotional service simply by executing such regulative principles of service. श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन, ये सब regulative principles. Next. Persons achieving perfection in devotional service simply by the causeless mercy of the Lord is explained in Srimad Bhagavatam in connection with the Brahma and their wives who were engaged in performing yajna or sacrifice. When the wives of Brahma were favored by the Lord Krishna and immediately attained the ecstasy love of Godhead, their husband said, "How wonderful is it is that although these women have undertaken no reformatory performance, such as accepting the sacred thread, have not resided in the monasteries of the spiritual master, have not observed the strict principle of celibacy, have not undergone any austerities, and have not philosophized upon the observance of ritualistic ceremonies, they still have attained the favor of Krishna, which is aspired after even by great mystics. How wonderful it is that these women have attained such perfection, while we, although Brahma, have who have performed all these reformatory activities, cannot attain to this advanced stage."
यहाँ पे यज्ञ पत्नी का बारे में बोल रहे हैं। तो यज्ञ पत्नी लोग यज्ञ ब्राह्मण लोग बहुत यज्ञ करते हैं, कर रहे हैं, करते हुए भी वो परफेक्शन पहुंच नहीं पाया। लेकिन यज्ञपति यज्ञ यज्ञ पत्नी जो ब्राह्मण पत्नी, वो जितना भी कुछ भी नहीं किए, परफेक्शन साधना नहीं किए थे, कोई रिफॉर्मेशन नहीं आया था उनका, सो कॉल्ड रिफॉर्मेटिव प्रोसेस में नहीं आए थे, उनका व्रतोपन ये सब नहीं हुआ, फिर भी वो लोग भगवान का प्रति उनका जो भाव था, उसके चलते ये प्रोसेस में नहीं आते हुए भी वो लोग परफेक्शन स्टेज में पहुंच के भगवान कृष्ण का कृपा थे। तो इसीलिए ब्राह्मण लोग को साधना सिद्ध कहते हैं, दे आर ट्राइंग फॉर बिकम परफेक्ट बाई थ्रू साधना। लेकिन ब्रह्म पत्नी व यज्ञ पत्नी को जो कृपा सिद्ध, बिकॉज वो क्या किए थे ना, भगवान जो कृष्ण बलराम जो भूख लग रहा था उस दिन बताए थे, कावड़ बाईस को जाओ, वो ब्राह्मण को मांग के लाओ। वो लोग बोला हम यज्ञ भी चल रहा है, शुरू नहीं हुआ, यज्ञ खत्म होगा तभी तो प्रसाद मिलेगा। तो ऐसे करके उनको रिटर्न कर दिए थे। लेकिन भगवान फिर उनको यज्ञ पत्नी के लिए भेजा। यज्ञ पत्नी सुन के घर में जहाँ जो था वो सब लेके कृष्ण बलराम के लिए प्रसाद सब लेके आ गया। एंड पूछा भी नहीं उनका हस्बैंड को, वो उनका हस्बैंड तो वहाँ पे कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे जंगल में, तो वो पूछा नहीं, डायरेक्टली आ गया। तो इसलिए और ये सोचे भी नहीं कि हमारा हस्बैंड कुछ बोलेगा। लेकिन रिटर्न जब हुआ था उसके बाद में ये ब्राह्मण लोग इसको रियलाइज किए कि देखिए हाउ दे आर फॉर्चुनेट, उनको भगवान के पास वो समझ पाए कि यज्ञ पत्नी उनका पति लोग भगवान का कितना इजीली कृपा प्राप्त हो गए। हम लोग समझ में नहीं पाया कि एक्चुअली ये क्या है। एक्चुअली यज्ञ जो कर रहे हैं, यज्ञ विष्णु है, विष्णु के लिए यज्ञ किया जाता है। लेकिन अगर खुद विष्णु मांग रहे हैं खाना के लिए, तो मतलब हम डायरेक्टली दे सकते हैं। जैसे बड़ी महाराज का स्टेज में हम लोग देखे थे, जो खुद भगवान आए थे, तो वो जो भी मांगे दान मांग रहे तो उसको देना है, क्योंकि भगवान के लिए ही यज्ञ कर रहे हैं वो, विष्णु के लिए, और विष्णु प्रेजेंट हो गए। सिमिलरली भगवान को भूख लग रहा है, भगवान के लिए खाना देने के लिए बना रहे प्रोसेस, लेकिन वो भगवान क्या है समझ में नहीं आया, और इसलिए उन लोग उनको भगा दिया था। तो लेकिन जगह पत्नी उनको समझ में आ गया, अरे भगवान जो छोटा बच्चा है उसको भूख लग रहा है, तो हम लोग कैसे भी हो उसको लेके खाना देना है, घर में पूछना है नहीं पूछना है। अभी तो हस्बैंड लोग अपना बाहर में यज्ञ कर रहे हैं, बिजी है उसमें, तो इसलिए वो डायरेक्टली चले गए विदाउट थिंकिंग एनीथिंग। तो इसलिए इसके बाद में उनको इसी का कृपा से यज्ञ ब्राह्मण को फिर रियलाइजेशन हुआ कि हम लोग गलती किया है। लेकिन हमारा वाइफ लोग बहुत फॉर्चुनेट है कि भगवान के लिए वो जाके अ, जो अल्टीमेट बेनिफिशियर है, भगवान को खुद मांग रहे हैं, तो उनके लिए देना है। इसलिए नियमाग्रह बोलते हैं, हम डिस्कस किए थे, लोग नियम को मानते हैं लेकिन पर्पस नहीं जानते। तो पर्पस होना चाहिए कि कृष्ण को सेटिस्फाई करना, जस्मिन तुष्ट जगत तुष्ट, और अंत्य नारायण नारायण स्मृति। सो पर्पस ये होना चाहिए कि भगवान को संतुष्ट संतुष्ट करना है, भगवान को स्मरण करना, लास्ट की भगवान को जिसे स्मरण कर सकते हैं वो बेसिस में रहना है। नेक्स्ट। There is a similar statement by Narada addressed to Sukadev Goswami. My dear Sukadev Goswami, you never took the trouble to reside under the care of spiritual master, and yet you have attained such a great status of transcendental knowledge. You never took the trouble to undergo severe austerities, and still, how wonderful it is that you have been situated in the most perfect stage of love of Godhead. Sukadev Goswami and the wives of the Brahmana perform yajna are vivid example of devotees who achieve the perfectional stage of devotional service by the grace of the Supreme Personality of Godhead. हाँ, यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी के बारे में बोलते हैं कि सुखदेव गोस्वामी की जो है भगवान उनका मातृगर्भ में थे ना, तो उस टाइम में जो बहुत कितना 16 साल थे। तो इसलिए वो कोई प्रोसेस में प्रिपरेटरी प्रोसेस नहीं किए थे। लेकिन उसमें वो बाहर निकलने के जो भगवान को उनका पिताजी बुलाया कि पिताजी बोला तुम बाहर आओ, वो तो बोला नहीं मैं माया में फंस जाऊंगा, आप बोलने से नहीं होगा, भगवान को बुलाइए। तो इसीलिए आ, जाके वो उनका पिताजी जाके फिर व्यासदेव जाके किसको बुलाए, भगवान को द्वारका से बुला के लाए थे, और उनका बुलाया कि आप आके बोलिए तो ये फिर निकलेंगे उनका गर्भ से, माता का गर्भ से। तो इसलिए उनको गारंटी दिए थे, उसके लिए वो आए थे, भगवान का कृपा प्राप्त हो गया था। ये बोले मैं माया में फंस जाऊंगा, नहीं नहीं मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, आप माया में नहीं फंसोगे।
इसलिए वो निकले और वो तुरंत चले गए उस टाइप का बीइंग अटैच्ड द हाउस होल्ड में नहीं रहे, वो चले गए जंगल को। जाके बाद में परीक्षित महाराज को वहाँ पे भागवतम श्रवण कराया। तो उनका पिताजी से वो भागवत सुने थे, उनका मातृगर्भ में जब थे। इस टाइप का यहाँ पे बोलते हैं कि भगवान का कृपा से ये ब्राह्मण पत्नी और सुखदेव गोस्वामी परफेक्शन स्टेज को प्राप्त हुए थे। इवन इफ दे हैव नॉट डन एनी रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो नहीं किए थे या कोई विविध प्रोसेस में साधना नहीं किए थे, तो इसलिए इनको कृपा सिद्ध बोलते हैं। और कृपा मिला है भगवान का, तो ये हो गया। तो समटाइम्स भगवान का कृपा से और समटाइम्स भगवान का भक्त का कृपा से कोई भी पर्सनल स्टेज को जा सकता है। तो यदि पर्सनल वेरी लेस, बट हम लोग खाली कृपा को देख के बैठने से नहीं होगा, हमको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा कि हम लोग सुखदेव गोस्वामी नहीं है या ब्राह्मण पत्नी नहीं है। तो इसलिए हम लोग को प्रैक्टिस करते हुए करने से अगर गुरुदेव का कृपा हो जाता है, तो भगवान का कृपा मिल जाएगा, तो हम उससे हम लोग परफेक्शन स्टेज को जा सकते हैं। एनी डाउट्स इन दिस? थोड़ा मैं कोशिश करता हूँ पढ़ने के लिए, थोड़ा गलती हो जाएगा तो थोड़ा माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं। Persons who have achieved eternal blissful life exactly on the level of Sri Krishna and who are able to attract Lord Krishna by their transcendental loving service are called eternally perfect. The eternals, the technical. The technical name of is नित्य सिद्ध Nitya Siddha. There are two classes of living entities made by namely named by Nitya Siddha and Nitya Baddha. The distinction is that the Nitya Siddhas are eternally Krishna conscious without any forgetfulness, whereas the Nitya Baddha or eternally conditioned souls are forgetful of their relationship with Krishna. हाँ, यहाँ पे नित्य सिद्ध नित्य बद्ध दो टाइप का ये इटर्नल परफेक्शन है। नित्य सिद्ध जो है ऑलवेज दे आर इटर्नली, नित्य मीन्स इटर्नली दे आर परफेक्ट है। एंड दूसरा है इटर्नली बद्ध है, मैं कंडीशन है। हम लोग जैसे नित्य बद्ध है, तो हम लोग कंडीशन सोल है जो कि भगवान को भूल गया है। डिस्टिंक्शन इज दैट नित्य सिद्ध इटर्नली कृष्णा कॉन्शियस, सब समय भगवान का साथ में जुड़ा रहता है भगवान सेवा में, विदाउट फॉरगेटिंग भगवान को कभी भी भूलते नहीं है। पर नित्य बद्ध जो है वो इटर्नली कंडीशन सोल्स जो कि सब समय फॉरगेटफुल ऑफ द कृष्ण का रिलेशनशिप फॉरगेटफुल है। So the position of the Nitya Siddha is explained in the Padma Puran in connection with the narration of the Supreme Personality of Godhead and Satyabhama Devi। ये नित्य सिद्ध के बारे में पद्म पुराण में भगवान बोल रहे नित्य सत्यभामा को, लॉर्ड टेल सत्यभामा, माय डियर सत्यभामा देवी, आई हैव डिसेंडेड। देखिए भगवान उनका पत्नी को क्या बोल रहे हैं, एड्रेस करते हैं देवी, सत्यभामा देवी। क्यों देवी बोल रहे हैं? इसीलिए हम लोग घर में हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ को कैसे ये करना चाहिए, देवी एड्रेस करना चाहिए। जो जिसका वाइफ का जैसे नाम है उसको वो नाम दे के उसके बाद में देवी, तो इसे बोलना पड़ता है। और वाइफ हस्बैंड को क्या एड्रेस करता है? हाँ आशीष प्रभु, उसको म्यूट कर दीजिए, वो मिकी को हो रहा है म्यूट। तो उसको बोलते हैं नित्य मुक्त, माने उसको बोलते हैं प्रभु। तो इसलिए एड्रेसिंग में ये भी जान के रखिए, ये नोट डाउन करिए, हस्बैंड वाइफ को देवी बोल के बुलाएगी एंड वाइफ जो हस्बैंड को प्रभु बोल के बुलाएंगे, ये पता होना चाहिए। दिस इज ए कंसेप्ट वन शुड नो। तो बिकॉज ये यहाँ पे आया तो इसलिए हम हमारे जो टीचर बताए थे उसको थोड़ा मैं ध्यान आया तो बता दिया। तो इसीलिए यहाँ पे वो सत्यभामा देवी बोल के बोल रहे हैं, सत्यभामा ऐसे वो नहीं बोल रहे हैं, सत्यभामा देवी। तो माय डियर सत्यभामा देवी, आई हैव डिसेंडेड टू दिस earthly planet by the request of Lord Brahma and other demigods. Those who are born into this family
और जदु आर माई इटर्नल एसोसिएट्स। जदु वंश तो भगवान का सब इटर्नल एसोसिएट्स है। माई डियर वाइफ यू शुड नॉट कंसिडर, माई डियर वाइफ बोलते हैं इसलिए, यू शुड नॉट कंसिडर दैट माई एसोसिएट्स आर नेवर सेपरेटेड फ्रॉम मी, दे आर माई पर्सनल एक्सपेंशन, and as such you must know that they are almost as powerful as I am. Because of that transcendental quality they are very very dear to me, and as I am very very dear to them. Anyone who becomes exhilarated by hearing the pastimes of Lord Krishna when he was present on this earth with his associate is to be understood to as a nitya siddha, eternally perfect। जब भगवान का बारे में श्रवण करते हुए और उनका पास्ट टाइम को सुनते हुए लीला को जो बहुत खुश हो जाते थे, वो नित्य सिद्ध है। In the 10th canto or 13th chapter, verse 22 of Srimad Bhagavatam, there is a statement: how wonderful are the fortunate residents of Vrindavan, such as Nanda and other cowherd men. The Supreme Personality Godhead, the Supreme Brahman, has actually become their intimate friend. उनका साथ में वो लीला कर रहे हैं। ए सिमिलर स्टेटमेंट इन द 10th canto 26th chapter 10 verse Srimad Bhagavatam. When Lord Krishna lifted Govardhan hill, the cowherd men under the protection of Lord Krishna became struck with wonder and went to Nand Maharaj and inquired from him, my dear Nand Maharaj, how is it that we are so intensely attached to Krishna and that Krishna is so affectionately attached to us? Does it mean that he is the super soul of everyone? तो मतलब देखिए वो लोग कितना अटैच्ड है, तो उनका अट्रैक्शन कितना होता था कृष्ण से, उनका अटैचमेंट था कावड़ बॉय से, एंड कृष्ण कावड़ बॉय को कृष्ण भी बहुत अट्रैक्टिव लगते थे। All of the residents of Vrindavan Dwaraka, namely the cowherd men and the members of the Jadu family, are eternally perfect devotees of Lord। तो वो लोग सब नित्य है, गोलोक वृंदावन से साथ में आए हैं लीला का पर्पस के लिए। तो ये जो कावड़ बॉयज है, जदुवंशी फैमिली है, तो ये सब इटर्नल है, नित्य सिद्ध है। As the Lord descends by the causeless mercy upon this planet, so in order to help in the pastimes of the Lord, these devotees also come here. They are not an ordinary living entities or conditioned soul. They are बद्धजीव नहीं है, and are ever liberated persons, mean eternally liberated, नित्य है, नित्य सिद्ध है, associates of the personality Godhead. And just as Lord Krishna behaves like an ordinary man when he descends to this planet, so the members of Jadu dynasty and the residents of Vrindavan execute activities just like a ordinary man, but they are not ordinary men. They are as liberated as Lord Krishna himself. So in the Padma Purana Uttarakhanda section, it is said, just as the Lord Ramachandra descends along with Lakshmana, an expansion of Sankarsana, and Bharata, an expansion of Pradyumna, so the members of the Jadu dynasty and the cowherd men of Vrindavan also descend with Lord Krishna in order to join in the transcendental pastimes of the Lord. When the Supreme Lord returns to his eternal abode, his associates also return with him to their respective places. As such, these ever liberated Vaishnavas are not bound by the material laws of birth and death. As stated in Bhagavad Gita by the Lord himself, his birth, deeds and activities are all transcendental. Janma karma chame divyam. So similarly, भक्त का भी जन्म कर्म दिव्य होता है। Similarly, the birth, death and activities of the associates of Lord are also transcendental. And as it is an offense to consider oneself to be Krishna, so it is offensive to consider oneself to be Yashoda, Nanda, or any other associates of the Lord. We should always remember that they are transcendental, they are never conditioned soul. हम लोग कभी कभी इस मुद्दे में हम नंद महाराज हो गए, हम जस्ता हो गए, ये सब सोचना ठीक नहीं है। तो इट इज described that Krishna, the enemy of Kamsa, has 64 transcendental qualities, and all of the ever liberated souls who accompany the Lord have these first 55 of the qualities। तो नित्य सिद्ध है उनका पास में, लेकिन 64 क्वालिटी नहीं है, उनका पास में फर्स्ट 55 क्वालिटीज है जो हम लोग डिस्कस किए थे। 64 भगवान का है, 60 विष्णु जी का है, एंड शिव जी का 55 है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं जो लिबरेटेड पर्सन है उनका पास में 55 क्वालिटीज है विदाउट एनी डाउट। सारे डिवोटीज आर रिलेटेड टू द सुप्रीम पर्सन गॉडहेड इन एनी ऑफ 5 ट्रांसनेशनल मेलोज। लाइक वो कैसे रहते हैं, ये जो भक्त लोग है इधर शांत दास्य साख्य वात्सल्य माधुर्य रस में रहते हैं। दिस रिलेशनशिप विथ द लॉर्ड आर इटर्नल एंड देयरफॉर this relationship with Lord is eternal. Therefore, the Nitya Siddha devotees don't have to strive to attain the personal stage of executing regulated devotional principles. They are eternally qualified to serve Krishna. यहाँ पे नित्य सिद्ध जो डिवोटीज है उनका बारे में बोला गया है, उनका 55% क्वालिटी भगवान का जो है 55 नंबर्स, दैट इज 84%।
क्वालिटीज भगवान का उनका पास में रहता है। एंड उन लोग को रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स जब प्रैक्टिस करना नहीं पड़ता है साधना भक्ति, तो वो लोग ऑटोमेटिकली ये एग्जीक्यूट करते हैं। वो नित्य उनका साथ में भगवान के साथ में पार्षद हिसाब से एसोसिएट हिसाब से रहते हैं। भगवान जहाँ जाते हैं वो लीला करते हैं। उन एग्जाम्पल देते हैं जदुवंशी जो लोग राजा है, जदुवंशी कुमार राजकुमार है जो भी जदुवंश में आए हैं, एंड ऑल्सो उनका भगवान का साथ में जो गोप्पा बालक गोपियाँ हैं, ये सब नित्य सिद्ध, ये इटरनली है। इसलिए हम लोग कभी कभी देखेंगे गोपा बालक और गोपी लोग बैठ के ऐसे चैंटिंग नहीं कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन ऐसे कर नहीं रहे हैं, तो हम लोग उनको इमिटेट करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। लेकिन सब समय वो कृष्ण को रिमेम्बर करते हैं, बिकॉज ये भगवान का साथ में प्यार से जुड़े हुए हैं। ऑलवेज दे रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। हम लोग भूल जाते हैं, इसीलिए हमको प्रैक्टिस करना पड़ता है रिमेम्बर करने के लिए। लेकिन जो नित्य सिद्ध है वो लोग भगवान को भूलते कभी भी नहीं है, और उनका प्यार से वो मग्न रहते हैं, और उनका सेवा सब समय करने के लिए जुड़ा रहते हैं, व्यग्र रहते हैं सेवा में, भगवान का साथ में जुड़ा रहते हैं। वो नित्य सिद्ध है, ये उनका दूसरा काम कुछ नहीं है। सब समय 24 आवर्स कृष्ण का सेवा में एंगेज रहते हैं, चिंतन में रहते हैं, 24 आवर्स भगवान को चिंतन करते रहते हैं। इतना उनको जितना ट्राई करने से भी हम उसको चिंतन से अलग नहीं कर सकता, कृष्ण चिंतन से, कृष्ण कर्म से अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम लोग नित्यबद्ध है, हम बंधन में पड़े हुए हैं। हमको प्रैक्टिस करते हुए, रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करते हुए, साधना भक्ति करते हुए हम लोग परफेक्शन स्टेज में जाने के लिए ट्राई करना पड़ता है, गुरुदेव का कृपा से, कृष्ण का कृपा से। नित्य सिद्ध, नित्यबद्ध, ये जो है यहाँ पे दो डिस्कस किया गया है। तो मुक्त, नित्यबद्ध, नित्य सिद्ध, बद्ध मुक्त। 55 शिव जी का क्वालिटी है ना। ओहो वो 84 आएगा। हाँ ठीक है जी। हाँ 64, 60, 55, 50, ब्रह्मा जी का 50 है, तो परसेंटेज 100, 93, 84, 78 परसेंटेज। नित्य सिद्ध शिव जी का जैसे क्वालिटी जितना है। ब्रह्म होता है, हो जाता है, लेकिन ये नित्य सिद्ध से भगवान का से गलती नहीं होता है, सबसे भगवान से लगा रहता है। भगवान हमारा जैसे एक जीव है ब्रह्मा जी, लेकिन हाईएस्ट लिविंग एंटिटी, तो इसीलिए बोला गया ब्रह्मा जी का पास में 50 क्वालिटी है, तो जीव का पास में भी 50 क्वालिटीज इन डिफरेंट डिग्री में आ सकता है, लेकिन अब 55 नहीं हो सकता है। हमारा बद्ध, हम लोग बद्ध जीव है, नित्य बद्ध वाला। लेकिन प्रैक्टिस करते करते ये बद्ध से मुक्त हो सकता है, नित्य बद्ध से भी मुक्त होके, लेकिन नित्य सिद्ध में जा सकते हैं नहीं जा सकते डाउट है, लेकिन नित्य सिद्ध नहीं जा सकते, बद्ध मुक्त हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, मुक्त होके भगवान की सेवा में रहेगा।